الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر پاک پر تشریف فرما مقتدر محتشم مکرم ارباب علم و بصیرت دانشوران حفاظ و قرہ سامعین نظام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے آواز بڑھا تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ آپ کا یہ عظیم شان جلسہ بموقع جشن دستار بندی کچھ لمحات کے بعد آپ وہ حسین منظر اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ دو طلبہ کو دولہا بنایا جائے۔ بڑا پروقار منظر ہوتا ہے جس وقت ایک طالب علم کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے اور اس ٹائم دعا کیا کرو اے اللہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا پھول کھلائے ہمیں بھی خوشی نصیب ہو۔ بول دو آپ نے جلسہ سجایا، آپ کی ذمہ داری اس میں کامیاب بنانا۔ بستی اچھی خاصی بڑی ہے پھر بھی قحط سالی ہے، اتنے آ گئے اب بھی غنیمت ہے۔ مدرسے کی زمین دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ مدرسہ ماشاءاللہ ایک وسیع میدان میں ہے۔ اللہ کرے کام بھی اس مدرسے کا ایسا ہی ہو جائے، آمین بول دو۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو ان کو سب کو سلامت رکھے۔ قاری محمد یوسف صاحب، مولانا توصیف صاحب، ان تمام کی اور اسٹاف کی شب و روز کی محنت کے بعد یہ عظیم کانفرنس آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حافظ محمد انور صاحب جو ناظم تعلیمات ہیں اس جامعہ کے، ان تمام کی اور اہل کمیٹی آپ سب کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے نقیب اہل سنت ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ سے بہترین شعر و شاعری سنی، اللہ پاک مزید بلندی عطا فرمائے۔ پیش رو ثناخوان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا انیس الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے بہترین آپ نے شعر و شاعری سماعت کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت پرانے ہیں، ہم نے ان کے پروگرام پالوں پہ بیٹھ کے سنے، اللہ ان کو ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ اور جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کے چہرے کو دنیا میں بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی ان کا چہرہ بے داغ رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم حضرت حافظ قاری عشرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ادریس صاحب قبلہ، اور یہ ہمارے تمام احباب بزرگ تشریف رکھتے ہیں، طلبہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج مجھے بہت اچھے وقت پر نمبر آیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی 10:30 بجے، اب جب تک آپ سنیں گے سناؤں گا، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فجر تک، جب تک آپ چاہیں گے سنو گے۔ تو ابھی سے کیسے سستی، ہم صرف رات کے 2 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں، دن میں امتحان کئی جگہ جانا ہوا، نیند ہمیں آپ سے زیادہ ستائی ہوئی ہے، ہمارے دماغ کی نسوں میں نیند گھسی ہوئی ہے۔ بس جب آپ نے محبتاً بلایا ہے اور ہماری حاضری ہو گئی ہے، بس ہمارا ایک ہی مشن ہے، وہ مشن یہ ہے ہماری قوم کے نوجوانوں میں انقلاب پیدا ہو جائے، اور مسلم قوم جو آج پستی جا رہی ہے، پسماندہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے زبوحالی کے سبب اور عروج و ارتقاء، اس زبوحالی سے کیسے نکلے، اس دلدل سے کیسے نکلے، یہ ہمارا مشن ہے، اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔
इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। साउंड आपका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, वैसे मैं साउंड को पूरा कहते नहीं, मगर बार साउंड फेफड़े ढीले कर देता है, हकीकत है। हाँ, मगर ये माशाअल्लाह अच्छा साउंड बुला है। अब इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए, पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंशाअल्लाह मेरे बाद आपके प्रोग्राम की आखिरी कड़ी हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब किबला संभली वो तशरीफ ला चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह करीम। और ये आपका जलसा तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह और इनकलाब आएगा। अब सुनिए, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आपने ये प्रोग्राम दस्तारबंदी के मौके पर सजाया। कुरान करीम की आयत को मैंने जिसे मौजूद सुखन बनाया उससे मुताल्लिक चंद बातें आपकी बारगाह में रखूं, बातें आगे बढ़ाऊं इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दे दीजिएगा, बाद में अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, आपको नहीं रोकूंगा। और 10 मिनट से पहले कोई गया तो रोक दूंगा, तकरीर बीच में खत्म करके रोक दूंगा, खड़े होकर रोक दूंगा। आप इतने नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे, सब दिखाई दे रहा है। 10 मिनट आप मुझे दीजिए, 10 मिनट के बाद में आपको इजाजत होगी। आप चाहें तो जा सकते हैं और आप चाहें तो फिर सुन भी सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। बोलने पे कोई जीएसटी नहीं, आप बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। सिनोरा, डिडोली, डेली, मुरादाबाद में बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जमीन इकट्ठी की है, अच्छी बात है। जायज तरीके से जितना कमाया जाए कमा लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर जायज तरीके से। मगर याद रखो, ये सफानी है, खत्म होने वाली है। प्रॉपर्टी वो तैयार करो जो हमेशा हमेशा रहे, कभी खत्म ना हो। वो प्रॉपर्टी जन्नत की प्रॉपर्टी है। वो क्या है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। देखते कौन कितनी प्रॉपर्टी, कितना अपना बड़ा बागीचा गार्डन बनाता है। बनाइए, खड़िए हो, बनाइए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र कीजिए और अपने नाम नेकियां दर्ज करते रहिएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर हैं। कुरान का ऐलान, क्या पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, दोनों में फर्क है। पढ़े लिखों में और बेपढ़ों में फर्क है। हाँ, इसलिए इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है। इल्म से ही इंसान बनता है। खाने पीने से कोई इंसान नहीं बनता, खाते पीते तो जानवर भी है। ये कहो कि हम बिरयानी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं तो हम इंसान नहीं। ये सिफत तो दूसरों में भी है, जानवर में भी है। इंसान कब होता है? इंसान का शरफ तब बढ़ता है जब उसके सीने में इल्म आता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मदरसे के वसी मैदान में प्रोग्राम है और इसका मौजू ही दस्तारबंदी है। उसी के अकॉर्डिंग में चंद मारूजात आपके बारे में रखूंगा। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कौन कह रहा है? कुरान करीम कह रहा है। कैसे बराबर नहीं? एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आपने ये मंच बिछाया, ये सोफा डाला, ये आपने अल्लाह अकबर कबीरा उलमा के लिए इंतजाम और इंतजाम अलग किया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हमने किसी को फोन करके कहा था हमारे लिए ऊपर मंच बिछाना, हमारे लिए सोफा भी डालना, हम तकरीर सोफे पे करेंगे, हम तकरीर ऊंची जगह बैठ के करेंगे? क्या कोई आलिम साहब आपको फोन करते हैं कि हमारे लिए मंच लगाना? क्या कोई आलिम साहब कहती है कि हमारे लिए सोफा लगाना? फिर भी आप लगाते हो, मंच लगाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आप नहीं लगाते बल्कि रब लगवाता है, अल्लाह लगवाता है। कुरान करीम की एक आयत कहती है, रफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है, उनके दर्जे बुलंद कर देता है। यानी जिनके सीने में इल्म आ जाए, जिनके सीने इल्म से रोशन हो जाए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर देता है, अल्लाह उनके नाम को बढ़ा देता है, अल्लाह उनकी शोहरत को बढ़ा देता है। आज दुनिया तरक्की 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 तरक्की, नाम 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 नाम, शोहरत 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 शोहरत, मेरे दर्जे बढ़ जाए, मेरे दर्जे बढ़ जाए, मेरे दर्जे बढ़ जाए। मगर कुरान में रब फरमाता इल्म वालों के दर्जे बढ़ते हैं, इल्म वालों के दर्जे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इल्म इम्पोर्टेंट है, इल्म अहम है, इल्म जरूरी है। कुरान करीम की आयत कह रही है, आप इसकी सीटी और कम कर दीजिए, इनको थोड़ी सी और कम कर दें ताकि इनके समझ में आए। समझ में आ रहा है ना आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बस मैंने आपसे 10 मिनट मांगी, वो आप तवज्जो रखिए, मैं तमीज़ मान रहा हूँ और फिर अपनी बात आगे बढ़ा के बहुत जल्दी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह करीम। इल्म जरूरी है, इल्म से दर्जे बढ़ते हैं। मसलन एक बात मैं आपसे कहूँ,
आपके यहाँ पर कोई नौकर काम करता हो और उसका बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन हो जाए, जुमे की नमाज का वक्त आए, कोई पढ़ा लिखा नहीं जो मुसल्ले इमामत पर चला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंगूठे भी देखी जाती है, टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, इमाम साहब की नजरें कहाँ रहती है, इमाम साहब चौराहे पे खड़े होते हैं, किससे कलाम करते हैं, किससे बात करते हैं, इनमें भी हम नजर रखते हैं। यानी मेरी दुनिया में फिक़ह पर जो अमल है, पूरी दुनिया की बात करूं, मैं अपना तजर्बा पेश कर रहा हूं, किसी का तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है, मैं अपना तजर्बा पेश कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो फिक़ह पर अमल है वो आपकी यूपी में है, और यूपी में मुरादाबाद और बरेली मंडल में है। अगर वरना आप पूरी दुनिया की खित्ते खित्ते को पढ़ लो, अल्लाह अकबर कबीरा, गले में टाई लग रही है, इमाम है, कोई भी लिबास हो इमाम है, चेहरे पे दाढ़ी हो ना हो इमाम है, पीछे से हाथ मारो इमाम, चाहे तो नफल नमाज पढ़ते हो, वुजू है या नहीं है कोई मतलब नहीं, मगर हमारे यहाँ पर हर अदा इमाम की देखते हो, हर सिफत इमाम की देखते हो, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह पाक ने आपको ऐसे खित्ते में पैदा फरमाया जहाँ इल्म वाले रहे हैं, आपका खित्ता इल्म का मरकज रहा है, ये अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान अजीम करम है। आप हिंदुस्तान ही के दूसरे सूबों में देख लो, अल्लाह पूरे पूरे शहर में कोई हाफिज कुरान नहीं, पूरे पूरे शहर में कोई आलिम दीन नहीं। जब हम जाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी अकीदत ये देखकर, उनकी मोहब्बत ये देखकर, बात को तो हमने देखा, एक वाकया मेरे साथ खुद हुआ अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए तो उसने मुसाफा करने से पहले अपनी स्लीपर चप्पलों को उतारा, उसके बाद में मुसाफा किया। यानी अकीदत देखिए, मोहब्बत देखिए, यानी उनके यहाँ पर आलिम नहीं, उनके यहाँ पर मुफ्ती नहीं। अब तुम्हारे घर घर में मुफ्ती है, तुम्हारे घर घर में आलिम है, तुम्हारे घर घर में हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, तो ये अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसे खित्ते में पैदा किया है जहाँ इल्म वाले रहते हैं, जहाँ ये मदरसे है, मदरसे है, मदरसे है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपसे कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक फरमाता है कि जिनके सीने में इल्म आ जाता है, अल्लाह पाक उनके सीनों को रोशन करता है और उनके दर्जे बढ़ जाते हैं। अल्लाह, मैं ये कहना चाहता था, अगर किसी के यहाँ पर नौकर है और उसका बेटा हाफिज कुरान, आलिम दीन हो जाए, अब वो जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा होगा, अल्लाह अल्लाह, उसके बाप का मालिक आए और नियत करे पीछे में अपने नौकर के बेटे के, मुझे बताइए नियत दुरुस्त होगी? मुझे बताइए नियत दुरुस्त होगी? क्या उसकी नमाज सही हो जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जो मुसल्ले इमामत पर खड़ा है, जो नमाज पढ़ा रहा है, उसके यहाँ पर जो नौकरी करता है वो उसका शहजादा है, मगर ये इल्म दीन है, ये कुरान का पैगाम है, ये इल्म हदीस का मर्तबा है। बादशाह हो, प्रधान हो, विधायक हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो, जब मस्जिद में आएगा, मस्जिद की इमामत अल्लाह अल्लाह खानदान की बुनियाद पर नहीं, विरासत की बुनियाद पर नहीं, मस्जिद का जो मुसल्ला मिलता है वो इल्म दीन की बरकतों से मिलता है, इल्म दीन हासिल करने की बरकतों से मिलता है। एक रिक्शा चालक का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, 24 घंटा मजदूरी करने वाले का बेटा है, मगर अल्लाह पाक का करम देखिए, अल्लाह पाक का एहसान अजीम देखिए, उसने कुरान क्या सीखा, पूरी बस्ती का इमाम बना दिया, बादशाह का इमाम बना दिया, बड़े बड़ों का इमाम बना दिया। अगर मर्तबा चाहते हो, दर्जे बुलंद करना चाहते हो, तो इधर आकर रास्तों में मत भटको, इधर आकर सोशल मीडिया पर भटकने की कोशिश मत करो। दर्जे बुलंद करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, कुरान का इल्म हासिल कर लो, अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद कर देगा। जब तक दुनिया में रहोगे शान से रहोगे, कब्र में जाओगे तब भी शान से रहोगे।